बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है मोनोड्रोमी थ्योरम। इस थ्योरम के हवाले से आज डिस्कस करेंगे। हमारी डिस्कशन मोनोड्रोमी थ्योरम के हवाले से होगी। सबसे पहले देखते हैं जी इसकी स्टेटमेंट क्या है। प्रूव दैट एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन w equal f of z can be continued analytically along every possible path lying in a simple connected domain D, which contains a contour C, having a point z equals z naught. Further, the resulting function is a single value. अब इसमें जितनी टर्म्स आ रही हैं तो सब की सब टर्म्स आपने पहले से पढ़ रखी है। एनालिटिक कंटिन्यूएशन क्या होती है ये आपको पहले से पता है। सिंपल कनेक्टेड पाथ क्या, सिंपल कनेक्टेड डोमेन क्या होती है, ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ रखी है। कंटूर क्या है ये भी पहले डिस्कस कर रखा है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या है ये भी आपने पहले डिस्कस किया हो। तो ये सारी चीजें पहले से आपने डिस्कस की हुई। अभी हम मोनोड्रोमी थ्योरम की स्टेटमेंट एक दफा फिर पढ़िए। एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन w equal f of z can be continued analytically along every path lying in a simple connected domain D, which contains a contour C having a point z equals z naught. हर कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन लेकर एनालिटिक कंटिन्यूएशन उसकी पॉसिबल है एवरी पॉसिबल पाथ, जब तक वो उसका पाथ कनेक्टेड डोमेन में मौजूद रहे और वो जो रिजल्टिंग नया फंक्शन बनेगा वो सिंगल वैल्यू फंक्शन। आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। ये इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। स्टेप 1, suppose the domain D is convex and C is circle। कोई सेट कन्वेक्स कैसे होता है? ये कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन भी ऑलरेडी स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं। C is a circle। Further, let Z not be the center of C। Now we define a single valued function f of z in D by setting a correspondence between every point z1 of the circle C and the well-defined value f of z1, which is analytic continuation of f of z। ऐसा सिंगल वैल्यू फंक्शन डिफाइन किया जाएगा जिसका नाम f of z हो, जो हर पॉइंट z1 के साथ, सर्कल के हर पॉइंट z1 के साथ उसकी कोरेस्पोंडेंस हो और वेल डिफाइंड वैल्यू f of z1 जो कि f of z की कंटिन्यूएशन। हम ये प्रूव करेंगे, हम ये दिखाएंगे कि f of z इज आल्सो एनालिटिक, द एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ f of z1 in the circle along the path z0 z1 requires a chain of disks covering this path. If the neighborhood of T
of Z1 is chosen in such a way that all path leading from Z0 to a point of the domain D1 belong entirely to the chain we started with. Then we can continue f of z to be analytic to any point of Z1, the point of the domain 1. It follows that function fz is analytic in the domain D1. Since Z1 is an arbitrary point of the domain D, therefore f of z is analytic everywhere in the domain D. आइए इसका स्टेप 3 मुलाहजा करते हैं. From above, we can conclude that analytic continuation of f of z in the circle C coincides everywhere with the function f of z. Hence, f of z is single valued in the domain D. Hence, the analytic continuation of f of z in the circle at the point z1 along the path z0 z1 remains unaltered. ये जो उसका पाथ है सर्कल में चेंज नहीं होगा. Therefore, if we analytically continue the function f of z in D along two paths, अब दो पाथ चूज कर लिए गए, एक C इसका नाम रखा गया, दूसरे का C1, जबकि आगाज Z0 से और आखिर Z1 तक. The analytic continuation will have the same value at the point Z1 to D. Z1 पॉइंट पर दोनों उनकी एनालिटिक कंट्रीब्यूशन सेम वैल्यू दे. Since the domain D is simply connected, any two paths joining Z0 to Z1 are same and the functions obtain single value. अब यहाँ इस थ्योरम की स्टेटमेंट को 3 स्टेप में डिस्कस किया गया है और एंड पर यह भी बताया गया है कि जो फंक्शन हासिल होगा वो सिंगल वैल्यू फंक्शन हासिल होगा. एक रिमार्क भी मुलाहजा करते हैं. If a function fz can be analytically continued along every path in a simply connected domain, if a function fz can be analytically continued along every path in a simply connected domain, then the resulting function is a single value. यानी आप कई एक पाथ इख्तियार करते हुए फंक्शन fz की एनालिटिक कंटिन्यूएशन करते हैं विदिन द सिंपली कनेक्टेड रीजन या डोमेन में, लेकिन याद रहे जो रिजल्टिंग फंक्शन होगा हमारा वो सिंगल वैल्यूड ही होगा. जरा एक दफा फिर इसकी स्टेटमेंट को मुलाहजा करें, एक दफा फिर स्टेटमेंट को पढ़िए. Any arbitrary function w equal f of z can be continued analytically along the every possible path lying in a simply connected domain D, which contains contour C having a point C equals z naught. Then the resulting function is a single value. यही बात हमको प्रूव करना है. ये हमारा था आज का टॉपिक. इसका नाम था मोनोटोमी थ्योरम. इसकी स्टेटमेंट को 3 स्टेप्स में प्रूव किया गया. थ्योरेटिकल इसकी डिस्कशन थ्योरेटिकल थी. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे. आज के लिए इतना ही. बाकी इंशाल्लाह
A.